નમસ્તે વાલા ભાઈઓ બહેનો, આજે ફરીવાર એક ધમાકેદાર વિડીયો સાથે આપ સૌ સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું। આપણે સૌ ટાટ એચ અને ટાટ એચએસ એટલે કે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતરની તૈયારી આપ સૌ કરી રહ્યા છો અને આ બંને પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જરૂરી એવા હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના કાવ્ય શિક્ષણને લગતા, કોઈ પદ્ય શિક્ષણને લગતા કે અન્ય પદ્ધતિના ઘણા બધા વિડીયો છે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ। એમાંનું ખાસ મહત્ત્વનું એટલે કે વ્યાકરણ પદ્ધતિ, હિન્દી વ્યાકરણ શિક્ષણની જે મુખ્ય પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ કઈ કઈ છે તેના વિશે આજે ચર્ચા કરવાની છે। કારણ કે આમાંથી 1-2 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે અને ક્યારેક મોટો પ્રશ્ન પણ આવે કે હિન્દી વ્યાકરણ શિક્ષણની મુખ્ય પદ્ધતિઓ સમજાવીએ તો એ કઈ કઈ છે એ બધી વિગતે ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના અંતે કરવાની છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ છે કે તમારું કન્ટેન્ટ છે જબરદસ્ત હોય છે, તો એવા ભાઈઓને ખાસ કે મારો મુખ્ય વિષય હિન્દી જ છે અને હિન્દીના મુખ્ય વિષય સાથે હિન્દીના વિદ્યાર્થીઓ પાછા ન પડે એ માટેનો મારો સતત પ્રયત્ન હોય છે। એટલે હિન્દીવાળા ભાઈઓ બહેનો માટે આ ખૂબ અગત્યનું છે, પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ મહત્ત્વનું છે। એવી જ આપણે વાતો છે કરતા હોઈએ છીએ, ખોટી વાતો છે આપણે કરતા નથી। સાથે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને પીડીએફને લગતી પણ ઘણી બધી કોમેન્ટ હોય છે, કઈ રીતની જોઈએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કઈ રીતની મળે જ છે। તમારે પીડીએફ જોતી હોય તમે જ્યાં જોઈ શકો કે ટાટ સેકન્ડરી અને ટાટ હાયર સેકન્ડરી બંને વિષય વસ્તુ અલગ હોય છે, પરંતુ મેથડ છે એ બંનેની અંદર સરખી હોય છે। જે ભાઈઓ બહેનોને આની પીડીએફ જોતી હોય, જો 9મા ધોરણની જોતી હોય તો તેની 99 રૂપિયા કિંમત છે, 10માવાળાની 99, એ રીતે 11-12ની પણ 99 રૂપિયા રાખેલી છે। મેથડની આપણે ફી છે એમાં થોડોક વધારો કર્યો છે, એટલે કે 149 રૂપિયા મેથડ, એટલે આ ત્રણેયથી કુલ થાય છે 347 રૂપિયા, પણ એ વિશેષ ઓફર આપણે છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે આપેલી છે। જો ત્રણેય તમે સાથે પીડીએફ લેશો તો 299 રૂપિયામાં છે તમને મળશે, અને અલગ અલગ જો જોશે તો 99, 99 ને 149 એ રીતની છે મળી રહેશે। તમને ખ્યાલ હશે કે ઘણા અમુક ક્લાસીસની કે અમુક પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે એક એકેડેમીવાળાએ પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક છે એ પદ્ધતિનું બહાર પાડેલું છે, તમે એની કિંમત જોશો તો 399ની કે સમથિંગ છે એ રહેલી છે। એ મેં જોયું છે, તો એમાં જે આપણે કન્ટેન્ટ જે જરૂરી છે એમાંથી આપણને કાંઈ છે મળતું નથી। એના બદલે આપણે આ પદ્ધતિશાસ્ત્ર તમે જોઈએ છે એટલે ખરેખર પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની હોય એવું આખું પદ્ધતિ અને મેથડ છે આપેલી છે। બધી જ પદ્ધતિઓ સમાવેશ છે, જે કાંઈ આવતા હોય મોટાભાગના સમાવેશ કરેલા છે, તો એ 299માં આખી આ રહેશે। વિશેષ ચર્ચા નહીં કરતા જોઈએ વ્યાકરણ શિક્ષણની પદ્ધતિઓ। પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની ગણી શકાય એવી વ્યાકરણ શિક્ષણની મુખ્ય પદ્ધતિઓમાં પહેલી છે आगमन पद्धति, एनी चर्चा करिए आप। व्याकरण शिक्षण की सबसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। संक्षेप में कहें तो इस पद्धति में छात्रों के सामने पहले कई सारे उदाहरण रखे जाते हैं, फिर छात्र उनका विश्लेषण करके स्वयं नियम या सिद्धांत तक पहुँचते हैं। यह विधि रटने के बजाय समझने पर बल देती है। इस विधि के 4 मुख्य चरण हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, शिक्षक बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण रखता है। छात्र उन उदाहरणों को ध्यान से देखते हैं और उनमें समानता ढूंढते हैं। और नियमीकरण, छात्र और शिक्षक मिलकर एक सामान्य नियम बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले उदाहरण बाद में नियम, वो आगमन पद्धति है। बीजी पद्धति से प्रयोग पद्धति। व्याकरण शिक्षण की एक अत्यंत व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। यह पद्धति पूरी तरह से करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। संक्षेप में कहें तो इस पद्धति में छात्र व्याकरण के नियमों को रटने के बजाय वाक्यों में शब्दों के प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। यह काफ़ी हद तक आगमन पद्धति से मिलती जुलती है। इस पद्धति में शिक्षक सीधा कोई नियम नहीं सिखाता, बल्कि निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। वाक्यों का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक छात्रों के सामने कुछ विशिष्ट वाक्य या शब्द युग्म रखता है। छात्रों द्वारा प्रयोग,
छात्रों को उन शब्दों का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। छात्र स्वयं देखते हैं कि वाक्य में स्थान बदलने या लिंग वचन बदलने से शब्दों के रूप में क्या बदलाव आ रहा है और अंत नियम निकालना। इस अभ्यास और प्रयोग के आधार पर छात्र स्वयं व्याकरण के नियम तक पहुँचते हैं। तीजी है सहयोग पद्धति। सहयोग पद्धति को व्याकरण शिक्षण में समवाय पद्धति या संसर्ग पद्धति के व्यवहारिक रूप में देखा जाता है। संक्षेप में कहें तो इस पद्धति में व्याकरण को किसी अलग कालखंड या अलग किताब से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि गद्य, पद्य, कहानी या रचना पढ़ाते समय ही शिक्षकों और छात्रों के सहयोग से प्रसंगवश व्याकरण सिखाया जाता है। चूँकि इसमें साहित्य और व्याकरण का सहयोग जुड़ा होता है, इसलिए इसे सहयोग पद्धति कहते हैं। निगमन पद्धति व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन, पारंपरिक और शिक्षक केंद्रित पद्धति है। यह पद्धति आगमन पद्धति के ठीक विपरीत काम करती है। संक्षेप में इस पद्धति में छात्रों को पहले व्याकरण का कोई नियम या परिभाषा रटा दी जाती है और बाद में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस नियम को स्पष्ट या सिद्ध किया जाता है। यह पद्धति 4 चरण में पूरी होती है। नियमों का ज्ञान। शिक्षक सबसे पहले बोर्ड पर किसी व्याकरणिक इकाई का नियम या परिभाषा लिख देता है और छात्र उसे याद करते हैं। प्रयोग या उदाहरण। इस नियम को समझाने के लिए शिक्षक बच्चों के सामने अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है और अंत में उदाहरणों और नियमों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। छात्र अन्य उदाहरणों या प्रश्नों को हल करके उस नियम की सत्यता की जांच करते हैं। 5वां से पाठ्य पुस्तक पद्धति। व्याकरण शिक्षण की अत्यंत पारंपरिक और औपचारिक विधि है। इसे निगमन पद्धति का ही एक रूप माना जाता है। संक्षेप में कहें तो इस पद्धति में व्याकरण सिखाने का मुख्य आधार व्याकरण की पाठ्यपुस्तक होती है। शिक्षक पुस्तक में दिए गए नियमों को क्रमवार पढ़ाता है और छात्र उस पुस्तक की सहायता से ही नियमों को रटते और अभ्यास करते हैं। इसे सुगा पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे तोते की तरह नियम रटते हैं। कक्षा पुस्तक का चयन। कक्षा के स्तर के अनुसार शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित व्याकरण की एक किताब होती है। क्रमबद्ध पठन। शिक्षक पुस्तक को पाठों के क्रम से खोलकर उनके नियम और परिभाषाएं पढ़ता है। और कंठस्थीकरण। छात्र पुस्तक में लिखे नियम, परिभाषा और सूत्रों को हूबहू याद करते हैं और अभ्यास कार्यों के अंदर पाठ के अंत में दी गई प्रश्नावली या स्वाध्याय को छात्र अपनी नोटबुक में हल करते हैं। 6ठी से सूत्र पद्धति। व्याकरण शिक्षण की अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक विधि है। यह पद्धति मूल रूप से संस्कृत व्याकरण शिक्षण की आई है और इसे भी निगमन पद्धति का ही एक रूप माना जाता है। संक्षेप में कहें तो यह पद्धति में व्याकरण के बड़े बड़े नियम और सिद्धांतों को छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया जाता है। छात्र इन सूत्रों को बिना समझे सीधे कंठस्थ कर लेते हैं और फिर उनके आधार पर व्याकरण सीखते हैं। यह विधि पूरी तरह से रटने के सिद्धांत पर काम करती है, इसीलिए इसे भी पाठ्यपुस्तक विधि की तरह सुग्गा पद्धति के अंतर्गत गिना जाता है। 7वीं से भाषा संसर्ग पद्धति। व्याकरण शिक्षण की अत्यंत व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। संसर्ग का अर्थ होता है साथ रहना या संपर्क में आना। संक्षेप में कहें तो इस पद्धति में छात्रों को व्याकरण के नियम अलग से नहीं रटाए जाते, बल्कि उन्हें उच्च कोटि के साहित्य, महान लेखकों की पुस्तकों और शुद्ध भाषा के सीधे संपर्क में रहकर व्याकरण सिखाया जाता है। यह पद्धति मानती है कि बच्चा व्याकरण के नियम पढ़कर शुद्ध बोलना नहीं सीखता, बल्कि शुद्ध बोलने वाले लोगों को सुनकर और अच्छी किताबें पढ़कर स्वतः ही शुद्ध भाषा सीख लेता है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે 7 વ્યાકરણ શિક્ષણની પદ્ધતિઓ છે જોઈ, જે ખરેખર પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યની છે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટની અંદર કંઈક છે તમે લખો કેવો લાગે છે વિડીયો તેના માટે।